Hello and welcome back to Law in Detail. Today we'll be discussing a very landmark judgment. It is a very important landmark judgment of Rajneesh versus Neha and others, which has been passed on the 4th of November 2020. The Honorable Justices are Honorable Justice Indu Malhotra and Honorable Justice R. Subhash Reddy. Why this judgment is very important? This judgment is very important for all the upcoming exams, whatever you are preparing for, because in this judgment, basically comprehensively guidelines are laid down for the payment of maintenance in matrimonial cases. I hope now you understand the importance of this judgment. So we'll see that there were total 5 issues which are dealt in this judgment. Let's dwell into the issues one by one and we'll understand what new points have evolved in this issue. So firstly, the first issue, which was the issue of overlapping jurisdictions. So what do we mean by overlapping jurisdictions is that we have seen that there are various laws, है ना, बहुत सारे ऐसे laws हैं जहाँ पे maintenance मिलती है आपको. It is just not only confined to section 125 CRPC. You can also get maintenance under Domestic Violence Act, under Hindu Marriage Act, under Hindu Adoption and Maintenance Act. So apart from CRPC section 125, there are myriad laws to regulate the maintenance. Okay, Special Marriage Act is also there, CRPC, DVA, है ना, Domestic Violence Act. तो acts तो बहुत सारे हैं और in all these acts, no, so independently you can go for filing for maintenance in each of the cases. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 125 में मेंटेनेंस फाइल कर ली देन यू कैन नॉट गो फॉर DVA. अगर आपने 125 में फाइल कर ली है देन सब्सिक्वेंटली यू कैन ऑल्सो गो एंड फाइल फॉर मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, because all of these remedies, all of these acts, they are made with a special purpose. These acts lay down independent and separate remedies. तो आप इन सारे में ही पैरेलली क्लेम कर सकते हो मेंटेनेंस के लिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. लेकिन अगर क्या होगा, अगर मान लो कि आप चूँकि यू आर अलाउड टेक्निकली कि आप सारे के अंदर क्लेम कर सकते हो, तो इससे मल्टीप्लिसिटी तो बढ़ जाएगी ना, मतलब बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी अंदर अलग अलग एक्ट्स के अंदर. और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मेंटेनेंस कुछ और मिल जाए, है ना, या फिर कहीं मेंटेनेंस कुछ और मिल जाए. सो देयर विल बी अ चांस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स. तो प्रॉब्लम ये थी कि ये तो अलाउड है, लेकिन इसकी वजह से ये सारी चीज़ें. एक और प्रॉब्लम है, समझो. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अ हस्बैंड हैज़ बीन डायरेक्टेड टू पे मेंटेनेंस ऑफ 10K सपोज अंडर 4 एक्ट. तो HMA में भी उसको 10,000 मेंटेनेंस देने, हामा में भी 10,000 देने, CRPC में भी और DV एक्ट में, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी 10,000 देने. तो ऐसे तो उस हस्बैंड की लाइबिलिटी बन जाएगी 40,000 मेंटेनेंस देने की. सो डोंट यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन होगा अपॉन द हस्बैंड, है ना. तो ये बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और ये बहुत अनजस्टिफाइड होगा और बहुत प्रेजुडिस भी कॉज करेगा हस्बैंड को, है ना. तो ये प्रॉब्लम आ रही थी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. तो देखो ना, पहले क्या था ना कि इसी बात पे ना कि एडजस्ट करना है कि नहीं, क्योंकि हम बहुत सारे लॉज के अंदर वो पास कर सकते हैं, लेकिन क्या एक लॉ के अंदर जैसे HMA में मेंटेनेंस दिया गया है, ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्या हम 125 में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं. तो इस बात को लेकर अर्लियर देयर वर डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स. सो लेट्स सी the view of one set of high courts. So the one set of high courts, basically the Honorable MP High Court and the Honorable Calcutta High Court, they believe that since these laws provide for independent and separate remedies, and therefore what happened कि since these are providing independence and separate remedy, there will be obviously multiple maintenance orders, है ना. सबके सारे laws के अंदर उनकी अपनी अपनी maintenance orders होंगी, and these maintenance orders cannot be adjusted or offset. तो ये कहना था MP और कैलकटा हाई कोर्ट का कि भले ही 4 लॉज ने, HMA ने अपनी दे दी, 125 ने अपनी दे दी है, ओके, DVA एक्ट ने अपनी दे दी है, ठीक है, और फिर SMA ने अपनी दे दी है, बट इनमें जितनी भी मेंटेनेंस अलग अलग एक्ट में है आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते. ओके, लेकिन देयर वाज अनदर व्यू
Another set of view was by Honorable Bombay and Honorable Delhi High Courts, which on the contrary held that कि ऑफसेट करना चाहिए और एडजस्ट करनी चाहिए पेमेंट, है ना, कि दो मल्टीपल एक्ट्स के अंदर मिल जा सकती है, लेकिन आपको मेंटेनेंस अमाउंट को ऑफसेट या एडजस्ट करना चाहिए, है ना. सो वेरियस हाई कोर्ट्स वर हैविंग देयर ओन ओपिनियन. सो अब देखो क्या होता है, अपना अपना ओपिनियन है. सो इसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए इन रजनीश वर्सेस नेहा, सो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन. सो इसी कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड करते हुए इट वॉज हेल्ड दैट वाइल देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वोकिंग मल्टीपल लॉज, सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन गो अंडर ऑल ऑफ द लॉज पैरेलली, आप सबके अंदर जा सकते हो जितनी भी लॉज आपको मेंटेनेंस दे रही हैं. लेकिन ये इनइक्विटेबल हो जाएगा अगर हम हस्बैंड को बोलते हैं मेंटेनेंस पे करने अंडर ईच ऑफ द प्रोसीडिंग्स इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड इन अ प्रीवियस प्रोसीडिंग. तो अगर हम हस्बैंड को बोलते हैं कि तुम सबके अंदर जितना फुल अमाउंट है उतना तुम्हें पे करना पड़ेगा, कोई ऑफसेट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. सो बेसिकली वी आर नॉट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द रिलीफ विच आर ग्रांटेड इन अ प्रीवियस प्रोसीडिंग. ओके, सो ऐसा करने से हस्बैंड को इनइक्विटी कॉज होगी एंड दिस विल बी वेरी इनइक्विटेबल. हेंस इन रजनीश वर्सेस नेहा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कोर्ट ने बोल दिया, हेंस द स्पाउस सीकिंग मेंटेनेंस. ठीक है, तो हेंस कोर्ट ने बोल दिया कि एडजस्ट आपको करना पड़ेगा. ओके, सो कोर्ट यहाँ पे ने बोला है ना, यहाँ पे लिखा है ना, मोरओवर द कोर्ट इन असेसिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, है ना. ये सारी कोर्ट्स अलग अलग एक्ट में जो मेंटेनेंस दे रही हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा. लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इज कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि बाकी सारी प्रोसीडिंग्स भी फाइल हो चुकी हैं, दे आर ऑल्सो रनिंग पैरेलली. सो इस बात के लिए कोर्ट ऑल्सो लेड डाउन दैट it is the duty of the spouse seeking maintenance. मतलब स्पाउस सीकिंग मेंटेनेंस मतलब एप्लीकेंट की बात कर रहा है. एप्लीकेंट कौन होगा? अगर हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी जा रही है तो ऑब्वियसली वाइफ विल क्लेम. तो वाइफ के ऊपर ये ड्यूटी है. सो द वाइफ इज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट कि उसको कितना मेंटेनेंस अवॉर्ड हुआ है फ्रॉम अ सेपरेट और प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट. सो कोर्ट ने ना बहुत सारी, इफ़ यू विल टेक आउट द जजमेंट तो आप देखोगे कोर्ट हैव लेड डाउन वेरियस एफिडेविट्स आर देयर, है ना. अगर उनको उस एफिडेविट्स में यू हैव टू डिस्क्लोज वॉट एवर मेंटेनेंस और वॉट एवर क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस यू वर ग्रांटेड इन द प्रीवियस सूट. सो आई होप इट इज़ क्लियर, है ना. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. Now let's come to issue number 2. Issue number 2 was dealing with payment of interim maintenance. So देखो interim maintenance की बात कहाँ की गई है ना. interim maintenance की बात 125 में कहाँ की गई है. So the third proviso, you can note it down. So the third proviso basically to section 125. 125 का जो third proviso है ना वो provide करता है that interim maintenance as far as possible should be disposed of within 60 days. So क्या बोलता है ये बोलता है कि 60 डेज के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी. और ये 60 डेज कब से स्टार्ट होता है? आपको 125 देखना पड़ेगा. 60 डेज कब से स्टार्ट होता है? जिस दिन से नोटिस सर्व हुई है कंटेस्टिंग स्पाउस पे, है ना. तो अगर वाइफ इंटरिम मेंटेनेंस मांग रही है तो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जिस दिन से हस्बैंड पे सर्व हुई है, नोटिस जिस दिन से सर्व हुई है, उस दिन से 60 डेज के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करना होता है. दिस इज व्हाट इज बीन लेड डाउन अंडर सेक्शन 125. लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि 60 डेज में पूरा इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होता है? Actually, this is not happening in the courts, because in courts we can say क्या होता है, family courts are already burdened with a huge many matrimonial cases, so उनके ऊपर pressure होता है tremendous cases का. And on the other hand, repetitive adjournment seek करती हैं parties, उनके lawyers बार बार adjournment मानते हैं और pleadings parties सही से नहीं बनाती, so it takes a lot amount of time. वैसे ही द पार्टीज, द स्पाउसेस ऑफन कंसील देयर इनकम. ऑब्वियसली हस्बैंड जो है वो अपनी इनकम कम दिखाने की कोशिश करता है,
वाइफ अपनी इनकम दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पास इनकम नहीं है, या फिर इतनी है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही है. सो ड्यू टू ऑल ऑफ दीज, नो, ड्यू टू द डिले टैक्टिक्स जो होता है ना, इसकी वजह से इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन, जो सेक्शन 125 थर्ड प्रोवाइजो के अंतर्गत 60 डेज में डिसाइड होनी चाहिए, ऑफन इन रियलिटी इट टेक्स अराउंड 1 to 1.5 years. ओके, सो इतने टाइम लग जाता है उसको. सो इस बात को एड्रेस करते हुए इन रजनेश वर्सेस नेहा, लेट्स सी व्हाट द कोर्ट हैज लेड डाउन. सो कीपिंग इन माइंड द जुडिशियल डिलेज in adjudicating interim maintenance proceedings and general practice of the spouse is basically of concealing their status, है ना. तो इसकी वजह से डिले हो जाता था, टाइम पे नहीं डिसाइड हो जाता. सो कोर्ट हैज streamlined the interim maintenance process, and let's see how they have streamlined. So the courts basically have drafted affidavit formats. Okay, so यहाँ पे ना कोर्ट ने बहुत सारी affidavit formats ड्राफ्ट की हैं, which is, if you want you can write down, it is affidavit of disclosure of assets and liabilities. So what it is, ये affidavit है, affidavit of disclosure of assets and liabilities. और ये affidavit आपको मिलेगी कहाँ? When you take out the judgment of Rajneesh versus Neha, उसके ही enclosure 1, 2 and 3 में you will get the affidavit. So आपको उस affidavit में आपकी पूरी financial status, है ना, आपको अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटस लिखनी होती है. ओके, है ना. तो इसको करने से क्या होगा, सो यू आर फाइलिंग ऑल द डिटेल्स ऑन द एफिडेविट, राइट. और अगर एफिडेविट पे इफ़ यू आर फाइलिंग इट रॉन्गली, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली देयर इज़ पनिशमेंट फॉर दैट, राइट. तो इसलिए पार्टीज ना रिफ्रेन करती हैं कि वो एफिडेविट पे गलत चीज़ें ना फाइल करें. ओके, सो ऐसा करके कोर्ट ने एक प्रयास किया है कि इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को जल्दी जल्दी सुना जाए. नेक्स्ट कोशिश जो कोर्ट ने की है वो है कि कोर्ट ने फिक्स कर दिया है टाइम पीरियड. ओके, ये इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसाइड करने की टाइम पीरियड फिक्स कर दिया है. देखो कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला है, कोर्ट हैज़ बेसिकली सेड कि ये जो एफिडेविट हो गया फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो ये बेसिकली रिस्पोंडेंट को, अब रिस्पोंडेंट कौन होगा, ऑब्वियसली द हस्बैंड. सो ये उसे फाइल करना पड़ेगा विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 weeks. तो ये 4 weeks के अंदर फाइल करना पड़ेगा हस्बैंड को, और उसको नॉट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी फाइल करने के लिए. ओके, एंड ही विल बी गिवन नॉट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज टू फाइल इट. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, तो यहाँ पे उसको 2 अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा नहीं दी जाएगी फाइल करने के लिए, प्लस उसको 4 वीक के अंदर फाइल करना पड़ेगा. और अगर कोर्ट को लगता है कि वो 2 अपॉर्चुनिटी के बाद भी फाइल नहीं कर पाया है, and he is seeking one more opportunity, and court thinks that ये जो डिले कर रहा है रिस्पोंडेंट, दैट इज हस्बैंड, जो ये डिले कर रहा है फाइल करने में, दैट डिले इज विलफुल, जानबूझकर कर रहा है, then what can the court do? The court can strike off the defense of the husband. ओके, सो आप ये सारी पॉइंट्स लिख सकते हो. वो कोर्ट क्या करेगी, वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी डिफेंस हस्बैंड की. और स्ट्राइकिंग ऑफ, व्हाट डू यू मीन फ्रेंड्स बाय स्ट्राइकिंग ऑफ? For those of you don't know, I must explain this. Striking off basically means that जो भी डिफेंस हस्बैंड ने लिया होगा against the wife in the maintenance application, जो ऑलरेडी वो डिफेंस ले चुका है, तो वो डिफेंस कंसिडर नहीं किए जाएंगे ऑन रिकॉर्ड. और आगे भी जब तक वो फाइल नहीं करता है, जब तक कोर्ट अलाउ नहीं करती है, आगे भी वो कोई सारे डिफेंसेस अपने फेवर में नहीं लीड कर सकता है. सो बेसिकली कोर्ट ऐसा मानती है कि रिस्पोंडेंट हस्बैंड है ही नहीं और वो कोई अपने फेवर में डिफेंसेस ले ही नहीं रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये एफिडेविट की रिक्वायरमेंट है जो आपको फाइल करनी है, हस्बैंड को फाइल करनी है, 4 weeks के अंदर फाइल करनी है, नॉट मोर देन 2 अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन, एंड if the husband has been avoiding it willfully, no, तब वहाँ पर क्या होगा, स्ट्राइकिंग ऑफ होगी डिफेंस की. और वो मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्राइकिंग ऑफ कैसी होगी. ये जो एफिडेविट से आपको इंक्लोजर 1, 2 and 3 में मिल जाएंगे इसी सेम जजमेंट के. आई होप ये क्लियर है आपको.
ओके, सो बेसिकली इस एफिडेविट में ना डिस्क्लोज करना होता है अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को। मतलब हस्बैंड बताएगा कि मेरी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, है ना। तो वाइफ को भी बताना पड़ेगा कि मेरी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ओके, सो पार्टीज इन एफिडेविट्स में अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बताती हैं। आई होप ये क्लियर है ना। अब नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, अगर मान लो कि एफिडेविट में कोई डिस्प्यूट है ना, अगर एफिडेविट में कोई बात है जो ऑपोजिट पार्टी को नहीं समझ में आ रही है ना, तो फिर वहाँ पर वो परमिशन लेके कोर्ट से सामने वाली पार्टी को इंटेरोगेटरीज भी भिजवा सकते हैं अंडर ऑर्डर 11 of CPC. I hope ये क्लियर है। These points something which I am telling you, these are related to CPC, but ये आप समझ लो तो ईजी होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि एफिडेविट में जो लिखा हो एज इट इज़ आपको समझ में आ जाए। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट, है ना, एंड अंडर ऑर्डर 11 of CPC यू कैन गो एंड यू कैन file interrogatories. You can ask the court basically to serve interrogatories on the opposite party. So basically interrogatories are set of questions which you ask from the opposite party in order to clear your doubts or in order to further explain those things in a proper manner, है ना। और अगर मान लो कोर्ट को भी कुछ डाउट है, तो कोर्ट भी अपनी जो स्पेशल पावर्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 165, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछ सकता है पार्टी से जिन्होंने एफिडेविट फाइल करी है। सो कोर्ट आइदर अंडर सेक्शन 165 और अंडर ऑर्डर 10 विच आर रिलेटिंग टू एडमिशंस एंड डिनायल्स, सो वहाँ पे कोर्ट बेसिकली क्वेश्चंस पूछ सकता है पार्टी से। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। अब नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड इशू। अब तीसरा इशू क्या है? तीसरा इशू ये है कि मेंटेनेंस मिलेगा कितना, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग मेंटेनेंस। क्योंकि देखो ऑब्वियसली एवरीवेयर इट इज टेलिंग कि मेंटेनेंस दे दो, इट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम पता लगाएं कि कितना एग्जैक्ट मेंटेनेंस मिलना चाहिए। सो द कोर्ट एक्नॉलेज्ड कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है टू कैलकुलेट द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। ओके, सो नो फॉर्मूला एज सच, हम पता नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन हाउएवर कुछ क्राइटेरियाज हैं। सो बेसिकली कोर्ट सेड दैट इट शुड वे द इंटरेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट स्पाउस। एप्लीकेंट स्पाउस कौन होगी? वाइफ, बिकॉज वाइफ ही मेंटेनेंस मांग रही है, अगेंस्ट द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट स्पाउस। रिस्पोंडेंट कौन हो गया? हस्बैंड। तो दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटस, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटस को कोर्ट कंसिडर करेगी। फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब है हाउ मच प्रॉपर्टीज दे आर हैविंग, हाउ मच इनकम दे आर हैविंग, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हम देख सकते हैं स्टेटस ऑफ द पार्टीज, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कोर्ट कंसिडर करता है व्हाइल ग्रांटिंग मेंटेनेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस ऑफ द पार्टीज? अब देखो, मान लो कि कोई हस्बैंड है, जब वो अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी रह रहा था अपने घर पे, ही वॉज प्रोवाइडिंग हर विथ एवरी काइंड ऑफ लग्जरी, है ना। तो वो उसे दे रहा था, मान लो सपोजिंगली द स्टेटस ऑफ लिविंग वॉज वेरी हाई, सो दे हैड अ BMW कार, दे हैड अ बंगलो, है ना, ही यूज्ड टू गिव हर ज्वेलरीज, है ना। तो अब मान लो कि वो अलग रह रही है एंड शी इज क्लेमिंग मेंटेनेंस, तो ही कैन नॉट से दैट आई विल गिव यू अ वेरी मीगर अमाउंट। व्हाई? बिकॉज स्टेटस ऑफ द पार्टीज तो मैटर करती है, बिकॉज हस्बैंड इज केपेबल और वाइफ को उतना ही मेंटेनेंस मिलना चाहिए द स्टैंडर्ड विच शी वॉज एंजॉइंग व्हेन शी लिव्ड विद द हस्बैंड। उस टाइम अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा था तो अभी कम क्यों? सो ही हैज़ टू मेंटेन इन दैट वे। ओके, तो दोनों की स्टेटस देखी जाएगी, नीड्स ऑफ द एप्लीकेंट देखा जाएगा। अब देखो क्या होता है, जनरली व्हाट प्रैक्टिकली हैपेंस इज नो, वाइफ विल जनरली एग्जैजरेट हर नीड्स, है ना। वो अपनी नीड्स जितनी है नहीं वो दिखाने की कोशिश करेंगी ताकि वो हस्बैंड से ज़्यादा मेंटेनेंस ले सके। एंड हस्बैंड ऑन द अदर हैंड ही विल ट्राई टू कंसील हिज इनकम, है ना, या फिर वो अपने खर्चे ज़्यादा दिखाएंगे या अपनी इनकम कंसील करेंगे। सो दीज थिंग हैपन्स। सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट हियर इज कि टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड ऑफ द एप्लीकेंट। वाइफ मांग तो रही है लेकिन एग्जैक्ट नीड, ज़रूरत उसकी कितनी है। इफ़ शी स्टडिंग इन कॉलेज, कॉलेज फीस क्या है,
ट्यूशन फीस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फीस क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन कोर्ट विल ग्रांट मेंटेनेंस. ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, है ना. तो रिस्पोंडेंट का मतलब है हस्बैंड, जिससे वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है. हस्बैंड के पास कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये भी देखी जा सकती है. और ये भी देखा जाएगा कि उसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ और फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. फर्स्ट सपोजिंगली हस्बैंड ने कितना लोन ले रखा है ना, और हस्बैंड को कितने खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस लगते हैं. ऑब्वियसली अगर मान लो कि उसके पास गाड़ियां हैं, वो ट्रैवल करता है, तो कितने पेट्रोल एक्सपेंसेस लगते हैं, खुद की दवाइयों पे मेडिकल एक्सपेंसेस कितने लगते हैं, लोन का अमाउंट कितना ही इज पेइंग ऑफ. So all these liabilities, no, all the financial responsibilities will be considered. Okay, and age and employment and status of the parties will also be considered, है ना. कि अगर मान लो if the wife is an IAS officer, obviously she is having a very good job, तो वो अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं. सो यहाँ पे कोर्ट विल बी रिलक्टेंट इन प्रोवाइडिंग अ मेंटेनेंस. लेकिन वही मान लो वाइफ इज अ गवर्नमेंट टीचर एंड supposingly she is getting a very less salary of ₹5,000 per month, क्योंकि अभी उसने स्टार्ट ही किया है मान लो टीच करना, है ना, तो उसकी सैलरी अभी के लिए कम है. सो ऑब्वियसली विद दैट मच अमाउंट शी कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, है ना. तो वो कैसे मेंटेन करेगी 5,000 में खुद को. तो इसीलिए यहाँ पर भले शी इज़ वर्किंग, शी इज़ हेल, शी इज़ हेल्दी, ऑल ऑफ द थिंग्स आर देयर, बट स्टिल व्हाट द कोर्ट विल डू, द कोर्ट विल अवॉर्ड हर सच सफिशिएंट मेंटेनेंस कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके. रेसिडेंशियल अरेंजमेंट्स भी देखेंगी एंड मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन भी देखेगा. सपोजिंगली वाइफ के पास जो बच्चा है उनका, वो वाइफ के साथ रह रहा है एंड पहले तो वो बच्चा छोटा था, सो एक्सपेंसेस वर रिलेटिवली लेसर, लेकिन अब ही हैज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ हिज ओन ट्यूशन, स्पोर्ट्स में उसने एडमिशन करा लिया है. सो अभी उनकी जो एक्सपेंसेस हैं दे हैव इंक्रीज. सो दीज ऑल्सो थिंग्स विल बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट. कोई बीमारी है कि नहीं, डिसेबिलिटी है कि नहीं, ऑल दीज क्राइटेरिया जो यहाँ पे है वो कोर्ट्स कंसिडर कर सकती है वो डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस. अब देखो एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई इज दैट what happens is that sometimes husband ये बोलते हैं कि I do not have any source of income, so absolve me from the liability, है ना, मैं मेंटेनेंस नहीं दे पाऊंगा, है ना. लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी है and it has been repeatedly been held by the courts that if the husband is healthy and the husband has his earning capacity, मतलब वो earn कर सकता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एबनॉर्मलिटी, है ना, तो उसको बॉडली फिजिकली कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ही इज़ एबल बॉडीड, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी हैं, तो अर्न कर सकता है, बट स्टिल ही इज़ नॉट अर्निंग, ही इज़ सिटिंग देयर, है ना. तो फिर वहाँ पर कोर्ट एब्सॉल्व नहीं करेगा, भले ही करेंटली ही इज़ हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम. द कोर्ट विल स्टिल डायरेक्ट हिम टू गिव मेंटेनेंस टू द वाइफ as it is the duty of the husband to maintain the wife. I hope ये क्लियर है. अब देखो, अब ये तीसरे इशू पे हम आ जाते हैं. अब ये तीसरा इशू क्या है कि कौन सी डेट से मेंटेनेंस अवॉर्ड करना पड़ेगा, है ना. तो अब देखो यहाँ पे इफ़ यू हैव रेड सेक्शन 125 क्लॉज 2, सो 125 क्लॉज 2 क्या कर रहा है, सेक्शन 125 क्लॉज 2 ऑफ CRPC इज बेसिकली गिविंग अ डिस्क्रिशन टू द कोर्ट. किस बात का डिस्क्रिशन, कि आप कब से मेंटेनेंस अवॉर्ड करो, है ना. तो कोर्ट को डिस्क्रिशन दी गई है कि यू कैन अवॉर्ड आइदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जब से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाली इस टाइम से अवॉर्ड कर लो, या फिर आप चाहते हो तो फिर जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेंस का इस दिन से अवॉर्ड कर लो. सो इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट दैट यू कैन अवॉर्ड आइदर ऑन दिस डेट और ऑन दिस डेट, है ना. बट यहाँ पे क्या है, देखो अब आप ये बात समझो, अगर मान लो कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से कोर्ट नहीं देती है, यहाँ पे आपका मेंटेनेंस एप्लीकेशन आपने फाइल किया, है ना, सो दिस इज़ द डेट ऑफ एप्लीकेशन. अब ये चली मान लो 3 साल ये चल गई ये केस, ठीक है. अब यहाँ पे जाके आपने ऑर्डर पास किया और आपने अवॉर्ड भी कर दिया इसी डेट से, है ना, ऑर्डर की डेट से. तो अब व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये होगी कि देखो ये जो डिले हुआ है ना 3 साल का,
है ना, इसके दौरान का मेंटेनेंस मान लो मिल नहीं रहा है ना, सो जो पार्टी जो मेंटेनेंस सीख कर रही है वुड ऑब्वियसली बी डिप्राइव्ड, वो डिप्राइव नहीं हो जाएगी ऑफ द सस्टेनेंस, क्योंकि भाई इतना टाइम लगाया, कोर्ट ने टाइम लगाया है एंड द पार्टी इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट, तो पूरे दौरान इस दौरान भी है ना उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, वो अपना एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेगी, है ना, वो अपने आप को सस्टेन कैसे करेगी, सो इट विल प्रेजुडिस हर, अगर है ना तो उसको प्रेजुडिस कर देगा। सो देयरफॉर यहाँ पे कोर्ट्स ने इस बात को कॉग्निजेंस में लिया एंड द कोर्ट सेड दैट दैट इफ देयर इज अ डिले एंड इट इज बेटर if in the interest of justice you award the maintenance from the original date, that is the date of application. okay, सो कोर्ट ने बोला कि एक गाइडलाइन ले डाउन कर दी बाकी सारी कोर्ट्स के लिए कि देखो भले डिस्क्रिशन दिया हुआ है 125 क्लॉज 3 में, बट इफ यू गो ऑन अवॉर्डिंग दिस डेट ऑब्वियसली द पार्टी विल बी प्रेजुडिस, ही विल हैव नो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, देयर विल बी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. So, in order to avoid these things, in order to avoid the prejudice to the parties, it is better in the interest of justice that you award it from the date of application. Now, let's read. The courts in the past have used various metrics to decide the date from when maintenance should be paid, including date from which application has been filed, the date of the court order, date from which respondent received notice. तो पहले इन सारी dates पे, लेकिन अब क्या हुआ है, कोर्ट ने सारी डेट्स को एग्जामिन किया और कोर्ट ने फिर क्या कंक्लूड कर दिया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कोर्ट ने कंक्लूड किया कि बेस्ट इंटरेस्ट में होगा अगर एप्लीकेंट दैट इज वाइफ एप्लीकेंट है तो उसको अवॉर्ड कर दी जाए मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज द ओरिजिनल डेट, है ना. अब ये क्लियर है. अब देखो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द लास्ट इशू इन दिस केस. द इशू डील्स विथ इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर्स. इन्फोर्समेंट की जरूरत क्या पड़ती है? सबसे पहली बात यह है ना कि हम वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फोर्समेंट. इन्फोर्समेंट मीन्स दैट बेसिकली अगर मान लो मेंटेनेंस ऑर्डर पास भी हो गई है हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड फिर भी पास होने के बाद भी इफ़ ही इज़ नॉट पेइंग द मेंटेनेंस, तो ये पूरा जो प्रोसीजर होगा मेंटेनेंस अवॉर्ड करने का, ये इतना टाइम जो वेस्ट हुआ, एवरीथिंग विल गो इनटू अ वेस्ट. सो एवरीथिंग विल बी फ्रस्ट्रेटेड अगर फिर भी मेंटेनेंस टाइम बाउंड मानने में नहीं आ रही है हस्बैंड से. तो इसीलिए अगर ऑर्डर्स के बावजूद इफ हस्बैंड इज नॉट पेइंग देन यू कैन गो एंड इन्फोर्स द मेंटेनेंस ऑर्डर. अब देखो, इन्फोर्समेंट के ना बहुत सारे प्रोविजंस हैं अंडर वेरियस लॉज. सो सम ऑफ द प्रोविजंस विच आई विल ले डाउन हियर इज, देखो इन्फोर्समेंट के बारे में 125 क्लॉज 3 ऑफ CRPC is also talking about. Section 128 is also talking about. These are from CRPC. Okay. And if I remember, Section 18, if I'm not wrong, of the Family Courts Act. So फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का सेक्शन 18 है ना, फिर CPC का ऑर्डर 21 है ना, ऑर्डर 21 ऑफ CPC. सो दीज आर डीलिंग विथ इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स. अब देखो बेसिकली क्या है 125 क्लॉज 3 क्या बोलता है. 125 क्लॉज 3 के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली 125 क्लॉज 3 टेलिंग दैट इफ द पार्टी फेल्स टू कंप्लाई, नो, अगर वो नहीं कंप्लाई कर रहा है विद ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, then the maintenance amount will be recovered as fine. ठीक है ना. तो आप उसको जैसे फाइन की रिकवरी कराते हो वैसे ही आप इसको रिकवर कर सकते हो, है ना. और ये 125 में बताया गया. ओके, फाइन की तरह रिकवर कर लो या फिर आप उसको इम्प्रिजनमेंट में भेज दो. इम्प्रिजमेंट कितने महीने की, या तो 1 महीने रखो उसके इम्प्रिजमेंट में, और अगर 1 महीने से पहले ही वो पैसे दे देता है तो उतने टाइम की इम्प्रिजमेंट में वो रहेगा अंटिल पेमेंट. ओके, ये 125 क्लॉज 3 बोलता है ना. फिर वैसे ही अगर हम बात करें ऑर्डर 21 CPC की, सो बेसिकली द कोर्ट्स हियर हैव आल्सो सेड दैट मेंटेनेंस ऑर्डर्स मे बी इन्फोर्स्ड सिमिलर टू अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड. और डिक्री की इन्फोर्समेंट कहाँ होती है, एग्जीक्यूशन कहाँ होती है, ऑर्डर 21 में. सो बेसिकली ऑर्डर 21 में आप क्या करा सकते हो, आप डिटेन करा सकते हो हस्बैंड को या फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो, है ना.
तो पहला वही है कि आप 125 क्लॉज 3 में करा लो, 128 में करा लो, या फिर ऑर्डर 21 में उसको डिक्री की तरह एग्जीक्यूट कर लो, है ना। सेकेंडली द कोर्ट इज सेइंग दैट मे स्ट्राइक ऑफ द डिफेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो देखो स्ट्राइकिंग ऑफ क्या कर सकता है, देखो अगर मान लो कोर्ट को लग रहा है कि हस्बैंड डिफॉल्ट तो किया उसने, ही हैज़ नॉट पेड द मेंटेनेंस एंड द डिफॉल्ट इज इंटेंशनल, जानबूझ के वो नहीं दे रहा है, उसको मज़ा आ रहा है कि उसकी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, इज इंजॉइंग इट, वो जानबूझ कर नहीं दे रहा है। सो इफ दैट इज विलफुल, है ना, द डिफॉल्ट इज विलफुल, तो कोर्ट इसके लिए क्या करेगा, हस्बैंड की डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। व्हाट इज स्ट्राइकिंग ऑफ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। तो कोर्ट क्या करेगा, हस्बैंड की डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ कर देगा। इसके अलावा कोर्ट एक और काम कर सकता है कि हस्बैंड के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं विच इज मेकिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर मच ईजियर नाउ, है ना। तो अब क्या है कि कोर्ट ने बोला कि इतने तरीके आपके पास मेंटेनेंस कराने, इन्फोर्स कराने के, टू मेक श्योर दैट द हस्बैंड पेज द मेंटेनेंस एंड दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर। सो आई थिंक दीज गाइडलाइंस हैव बीन एग्जॉस्टिवली कवर्ड बाय मी। आपको इन्फोर्समेंट अच्छे से समझना है तो फिर आप मेरी बाकी वीडियोस में देख सकते हो विच इज़ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, स्पेशली अबाउट द इन्फोर्समेंट। I have put the link in the description box, and if you like a video, kindly subscribe to our channel, and thank you.